آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے بہار کے دربھنگا ضلع کے خرما قصبے میں، جہاں کے تالاب اور ہرے بھرے درخت خرما کی آب و ہوا کو تازہ رکھتے ہیں۔ خرما کا یہ مدرسہ، جسے بشارت العلوم کہتے ہیں، ریاست بہار کی علمی، روحانی اور مرکزی درسگاہ ہے۔ خرما قصبے میں جہاں سڑک کے ایک طرف یہ مسجد اور مدرسہ ہے تو دوسری طرف یہ مندر بھی ہے۔ جی ہاں، ایک ہی روڈ پر یہ دونوں مذہبی مقامات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خرما کے ہندو اور مسلمان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ پیش خدمت ہے ہندوستان کے صوبے بہار کے ضلع دربھنگا کے خرما قصبے کا شاندار آل انڈیا مشاعرے کا ویڈیو۔ جی ہاں، یہ مشاعرہ جو خرما کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا مشاعرہ تھا، اسے سننے کے لیے لگ بھگ 10,000 لوگ تشریف لائے تھے۔ اس مشاعرے کو آرگنائز کیا نوجوان ویلفیئر سوسائٹی خرما دربھنگا نے۔ اس مشاعرے کو آرگنائز کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا اس مشاعرے کے کنوینر جناب شکیل انجم صاحب نے۔ جناب شکیل انجم صاحب نیک دل، ادب نواز شخص ہیں، جنہوں نے اس قصبے میں مشاعرے کی روایت کو زندہ رکھا ہے۔ آج اس سے 25 سال پہلے بھی انہوں نے ہی مشاعرہ آرگنائز کیا تھا۔ شکیل انجم صاحب یوں تو کاروبار کے سلسلے میں دہلی رہتے ہیں، لیکن وقت وقت پر خرما جا کر وہاں کے سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے سابق مرکزی وزیر، کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور ترجمان، نیک دل، خوبصورت انسان، ادب نواز شخصیت جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب۔ تو دوستو، یہ ہیں آپ سب کے محبوب شاعر جناب الطاف ضیاء صاحب۔ مالیگاؤں سے ان کا تعلق ہے، ایک بار جانا ہوا ہے مالیگاؤں، بہت اچھے لوگ ہیں مالیگاؤں کے۔ بہرحال دوستو، اس مشاعرے میں جناب الطاف ضیاء صاحب نے اپنی شاعری سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ لگ بھگ ہر شعر پر لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر، ہاتھ کھڑے ہو کر داد دے رہے تھے، واہ واہ کر رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ جی ہاں، لگ بھگ 35 منٹ اپنا کلام سنایا ہے آپ سب کے محبوب شاعر جناب الطاف ضیاء صاحب نے۔ اور دوستو، ڈائز پر بیٹھے ہوئے معزز حضرات ہوں، شعراء اکرام ہوں، سبھی نے ان کی تعریف کی۔ ناظم مشاعرہ انور جلال پوری صاحب نے بھی واہ واہ کہا۔ جی ہاں دوستو، ان کا یہ پورا ویڈیو آپ دیکھیں گے، لیکن آپ کو ہم بتا دیں کہ اگر آپ کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے تو اپنے اینڈرائیڈ موبائل کے پلے سٹور میں جا کے حضور والا یلا ٹاک ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ہمارے سبھی گروپ سے جڑ سکتے ہیں۔ آپ سنیے اپنے محبوب شاعر کو نان سٹاپ۔ اب آئیے، ہماری فہرست بڑی معتبر ہے، شعراء کی تعداد بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن معیار بہت بلند ہے۔ سقراط کا زہر حلاحل ہو کہ عیسیٰ مسیح کی صلیب، رام کا بنواس ہو یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، یہ ہماری غزل ہے جس میں تاریخ کا کوئی موضوع، کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جو غزل اپنے دامن میں گل بوٹے کی طرح ٹانکے نہ ہو۔ آئیے، میں اس غزل کے شاعر کو آواز دے رہا ہوں جس نے پوری دنیا کو اپنی آواز، اپنے انداز اور اپنی غزل کی سادگی اور اس میں جو معنویت اور گہرائی ہے، اس کی وجہ سے دنیا کے سامعین کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ آئیے مالیگاؤں چلیں، جناب الطاف ضیاء سے ملاقات کی جائے۔ تالیاں بتا رہی ہیں کہ الطاف ضیاء کے لیے آپ کے دل میں کتنی تڑپ ہے، کتنی محبت ہے۔ جناب الطاف ضیاء مائک پر تشریف لائیے۔ ہاں دیکھیے، اس مردانہ لہجے کے شاعر سے آپ کتنا زیادہ سن لیتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ میرا کام ختم ہو گیا، میں نے انہیں مائک پر پکار دیا۔ حاضرین، میں آپ کے اس دیار میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے لوٹوں تو آپ کی
मोहब्बतें दुआएं मेरे साथ हों। आज के इस मुशायरे के रूह रवां शकील साहब, जिन्होंने बड़ी मोहब्बतों और मेहनतों से इस मुशायरे को सजाया है। आज के इस मुशायरे के सदर मोहतरम बद्र आलम साहब, आज के इस मुशायरे के नाज़िम मुशायरा प्रोफेसर अनवर जलालपुरी साहब, हमारे सरपरस्त निगरान रईस अंसारी साहब, इन तमाम सीनियर लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूं और यहाँ से अपना शेरी सफ़र शुरू करता हूँ। इरशाद मतला पढ़ता हूँ दोस्तों, और मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं जहाँ मतला पढ़ने जा रहा हूँ वो सुखन फहमों का मजमा है, बाज़ौक़ लोगों की भीड़ है। मैं मतला पढ़ता हूँ और आप सभी हजरात से दुआएं चाहता हूँ। सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा, सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा। दोस्तों जुड़ जाएं और मुझे बताएं आपकी आप शायरी सुनना चाहते हैं। पेश करता हूं मुलाज़म में। सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा, सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा, सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा। सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा, सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा। ये काम कोई और नहीं यार करेगा, ये काम कोई और नहीं यार करेगा, ये काम कोई और नहीं यार करेगा। ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, ये फिक्र मुझे चैन से, ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती। अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा, अब कौन मेरी कौम को बेदार। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये फिक्र मुझे चैन से, ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती। अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। क्या ज़ियापाशी है भाई? मैं जिसके लिए शहर की गलियों से लड़ा हूँ, अब मुझे देखना ये है कि इस मजमे में कितने लोग हैं जो इश्क में लड़ना जानते हैं, इश्क में मिटना जानते हैं। पेश करता हूं और जो शख्स खामोश रहेगा मुझे उस पर शक हो जाएगा। मैं पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाएं। अब आप अपने दाएं बाएं नजर दौड़ाएं कि यहाँ पर इश्क बेजार कितने बैठे हैं। पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं। ये काम कोई और नहीं यार करेगा, सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा। ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। मैं जिसके लिए शहर की, मैं जिसके लिए शहर की गलियों से लड़ा हूँ, मैं जिसके लिए शहर की गलियों से लड़ा हूँ, रुसवा वही मुझको सर बाजार करेगा, रुसवा वही मुझको सर बाजार करेगा।
रुसवा वही मुझको सर बाजार करेगा। ये काम कोई और नहीं यार करेगा, ये काम कोई और नहीं यार करेगा। मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा, बहुत खूब। मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा। मैं रात के लश्कर से, मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा। मैं रात के लश्कर से अकेला ही लड़ूंगा। साया तो मदद करने से इनकार करेगा, साया तो मदद करने से इनकार करेगा, साया तो मदद करने से इनकार करेगा। ये काम कोई और नहीं यार करेगा, ये काम कोई और नहीं यार करेगा। बिलखुसूस ये शेर आप तक पहुंचाना चाह रहा था, वरना मेरे पास नई गजलें भी हैं, लेकिन आपका बहुत एहसानमंद हूं मैं कि आपने ये गजल सुन ली और मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। इस मुशायरे के जो कन्वीनर हैं शकील साहब, मैं उनके हवाले से ये शेर आप सबकी नज़्म करना चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। और अगर ये शेर सच्चा हो, अच्छा हो, तो कोई बंदा खामोश न रहे, कोई बुजुर्ग खामोश न रहे, कोई जवान कोई नौजवान खामोश न रहे। पेश करता हूँ और आप सब भी जरा सा जुड़ जाएं ताकि मुझे लगे कि आप सिर्फ मुशायरा सुनने आए हैं ना कि देखने आए हैं। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। सर काट के फिर सर पे मेरे वार करेगा, ये काम कोई और नहीं यार करेगा। ये फिक्र मुझे चैन से सोने नहीं देती, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा, अब कौन मेरी कौम को बेदार करेगा। उस वक्त समझ लेना, उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है, उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है, उस वक्त समझ लेना कयामत की घड़ी है। जब आईना सच कहने से इनकार करेगा, जब वाह वाह वाह। अरे अल्ताफ आइए 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 आइए। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैं अपने भाई हाशिम फिरोजाबादी से ये पूछने गया था कि एक गज़ल तो आपकी कामयाब हो गई, अब दूसरी गज़ल मुझे कौन सी पढ़नी है। तो उन्होंने मुझे जिस गज़ल का हुक्म दिया है, मैं वो गज़ल, वाकई दोस्तों आप ही जैसों की तलाश थी मुझे, आज मुझे आप जैसे लोग मिल गए ताकि मैं वो गज़ल खुल के पढ़ सकूं और आपकी दुआएं हासिल कर सकूं। मतला पढ़ता हूं, सुने अताओ इरशाद। मतला बतौर खास मुहाजा फरमाए। सुने दोस्तों, आशिकों की तादाद तो मैंने गिन ली, अब बखील अब कंजूस कितने यहाँ बैठे हैं ये भी मुझे देखना है। पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए। और माशाअल्लाह मुझे ऐसा कोई नहीं लग रहा इस मजमे में जो बखील हो कंजूस हो। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। सुने दोस्तों, देखिए जरा सा सब्र भी कर लें, उनकी मोहब्बतें हैं, ये जो कैमरा लिए खड़े हैं उन्हें अपना काम करने दें, आप भी सुनिएगा। पेश करता हूँ, इजाजत है? मतला पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए, सुनिएगा आप सब। अगर अभी पूरा तो होने दे मेरी जान, वाह, सिर्फ आवाज पर दाद मत दे, बहुत मिसरे पर दाद दे, शेर पर दाद दे। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए। अगर ईमान
ہے تو من میلا نہیں ہوتا. شریک ہو جانا دوستو، ورنہ میں یہ مطلب پڑھ کے یہی اس غزل کو روک دوں گا. پیش کرتا ہوں ملازم میں. اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. اگر ایمان سلامت ہے، اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. زیادہ بولنے سے تو، زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا. زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا. ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا. ادب کی حد بہت اچھے، واہ واہ. سخن میلا نہیں ہوتا. زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا. ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا. سخن میلا نہیں ہوتا. اگر ہم لوگ، دوستو اتنے اچھے لوگ ہیں آپ کہ میرا جی نہیں چاہ رہا کہ اس غزل کا کوئی شعر میں چھوڑ دوں. یہ غزل میں اکثر ایسا، یہ جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں یہ شعر پڑھنے کو من نہیں کرتا، لیکن آج آپ لوگوں کو دیکھ کر ہمت ہو رہی ہے یہ شعر پڑھنے. پیش کرتا ہوں میں. اگر ایمان جو ہم خود کو بچا لیتے جہاں کی دھول مٹی سے، جو ہم خود کو بچا لیتے، جو ہم خود کو بچا لیتے جہاں کی دھول مٹی سے. بدن بے داغ ہوتا پیرہن میلا نہیں ہوتا. بدن بے داغ ہوتا پیرہن میلا نہیں ہوتا. بدن بے داغ ہوتا پیرہن میلا نہیں ہوتا. بطور خاص جس شعر کے لیے میں نے یہ غزل چھیڑی ہے وہ پہنچ رہا ہے یہاں پر بہت سے پاکیزہ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. میں ان پاکیزہ سینوں کی نظر پروفیسر انور جلال پوری صاحب کے حوالے سے، رئیس انصاری صاحب کے حوالے سے یہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. ملازم میں. اگر ایمان، اور میرا چیلنج ہے کہ کوئی بندہ اس مجمع کا خاموش نہیں رہ سکتا میرے اس شعر کے سننے کے بعد. اگر ایمان
होशियार रहिएगा आप सब। एक शख्स भी खामोश रहा तो मेरी जगह खाली है, मैं चला जाऊंगा। पेश करता हूं मुलाजा फरमाएं। जिन्हें आयात कुरानी जो सदका बांटते हैं, उनका धन मैला नहीं होता। शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। जिन्हें आयात कुरानी, जिन्हें आयात कुरानी ज़बानी याद है उनकी, राहत महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता। राहत महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं, उनका धन मैला नहीं होता। दोस्तों, बहुत मुहज़्ज़ब हो चुके हैं आप सब। मेरा जी चाह रहा है कि दो पाकीज़ा मिसरे आपकी इस अदालत में और पेश कर दूं। पेश करता हूं मुलाजा फरमाएं। मदीने की ज़मीं का एक एक ज़र्रा है पाकीज़ा। सुने दोस्तों, आखिरी शख्स तक मेरा ये मिसरा पहुंच रहा है, ये शेर पहुंच रहा है। ताईद होनी चाहिए मेरे शेर। बताओ इरशाद। अगर मदीने की ज़मीं का एक एक ज़र्रा है पाकीज़ा, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता। वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता, बदन मैला नहीं होता। हमारे मुल्क के रहबर, हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। अगर ये होश में होते, वतन मैला नहीं हो। वाह, अरे अल्ताफ, आइए 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 आइए, देखिए सब दीवाने आपके हैं, दीवाने। वो शजर वाला पढ़ दीजिए, और फिर ये आवाज देती पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं मेरे मोहतरम ने फरमाइश की है, एक मतला एक शेर में जरूर पढ़ूंगा, उसके बाद मुकम्मल। जरा सा इसकी आवाज समझ में नहीं आ रही, इसकी आवाज बढ़ा दीजिए। और मैं चाहूंगा कि ये जहां भी है ये माइक ऑपरेटर, वो जरा सा ध्यान दें। अब यहाँ से जो तमाम शोरा हैं बहुत अहम हैं, जिनके लिए मैं माहौल बना रहा हूं। एक मतला एक शेर पढ़ता हूं। शकील भाई सुने, मतला पढ़ता हूं दोस्तों। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, ये इधर की तो बेचैनी मेरी समझ में नहीं आ रही,
पता नहीं क्यों इतना बेचैन हैं ये लोग। अभी तो मैंने वो पढ़ा भी नहीं जिससे इनकी बेचैनी और बेताबी और बढ़े। अगर यही हाल रहा तो मैं वो तमाम कलाम अपने बचा के ले जाऊंगा जो मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। मतलब पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, गजल ये जब मैं छेड़ता हूं और जब आप लोग मिसरा उठाते हैं तो मेरे अंदर एक सलीका आता है। जो सलीका मेरे अंदर पैदा होता है वो जब आप तक पहुंचता है तो आप लोगों में भी एक मोहब्बत जागती है और ये मुशायरे का रंग दोबाला हो जाता है। मोहब्बतों से सुन रहे हैं शकील भाई, जरा सा आप बैठ जाएं, बहुत अच्छा हो रहा है सब इंतजाम। पेश करता हूं मतलब मुलाजा। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं, वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूं जो आपके शहर से मुंसलिक है। जी 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 मैं पढ़ता हूं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख। इरशाद। मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूं जो आपके शहर से मुंसलिक है। अगर मैंने वाकई कह दिया हो आपके मन की बात तो दुआएं चाहता हूं। मुलाज़िम बैठ जाए इत्मीनान से अपनी जगह ले लें आप सब। मैं जब तक आप बैठ नहीं जाएंगे मतला ही पढ़ता रहूंगा इंशाअल्लाह। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। ये ऐसे नहीं भैया, ये बेअदबी है, ये आप डांस मत करो यहाँ खड़े होके। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में। इस मिसरे का मजा नहीं लिया आपने, इसका मतलब ये हुआ कि ये शेर मेरा जाय होना है, लेकिन एक चांस है आपको। मैं पढ़ता हूं। शजर की शाख पर जब भी समर भाई साहब बैठ जाइए। चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में, चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में। मुझे दरभंगा के होशियार सब दीवाने लगते हैं, मुझे दरभंगा के होशियार सब दीवाने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। अब एक शेर पढ़ना चाहता हूं, नौजवानों के मन की बात करना चाहता हूं। चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में, मैं जब उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूं। इम्तिहान है दूसरे मिसरे पर आप सबका।
मैं जब उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूँ, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी। और दोस्तों, जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो इस मुशायरे के जो कन्वीनर हैं शकील साहब, इन्होंने बड़ी खिदमत की हमारी, और हर वक्त वो किसी ना किसी को भेजकर ये पूछते रहे कि किसी बात की कमी तो नहीं है, किसी चीज की कमी तो नहीं है। मैं उनकी इस मेहमान नवाजी को सलाम अर्ज करते हुए एक शेर उन्हीं के हवाले से आप सबकी नज़ करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। शजर की शाख पर जब भी दरो दीवार से रहमत की खुशबू आने लगती है, खुशबू आने लगती है। हमारे घर में जब मेहमान आने जाने लगते हैं, हमारे घर में जब। भाई महाराज से मालेगांव से आए हैं, ये बहुत मुबारक। चलिए, अगर कहीं और से आता तो मुबारकबादी नहीं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, तुम्हारी याद से जब दिल मेरा घबराने लगता है। दोस्तों, बहुत ही आसान मिसरा है ये, कभी भी किसी भी वक्त कहा जा सकता था, कोई भी कह सकता था, लेकिन अगर मिसरा लग गया हो तो आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, तुम्हारी याद से जब दिल मेरा घबराने लगता है, तुम्हारी याद से जब दिल मेरा घबराने लगता है। तुम्हारे गम करीब आकर, तुम्हारे गम करीब आकर मुझे समझाने लगते हैं, तुम्हारे गम करीब आकर, तुम्हारे गम करीब आकर मुझे समझाने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी। और दोस्तों, मैं देख रहा हूं मेरे दाएं बाएं दोनों तरफ के लोग मजबूत हैं, बीच में क्यों इतने बुझे हुए लोग बैठे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं इनको घर से निकाल दिया गया या यहाँ के बाद ये जेल जाने वाले हैं, पता नहीं क्यों इतनी खामोशी तारी है। लेकिन मेरा यकीन है कि इस शेर पर ये खामोश नहीं रह सकेंगे, इसलिए कि इनके भी दिल की बात है। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं। शजर की शाख पर जब भी वो कातिल है हमारे, और मकतूल है लेकिन वो कातिल है हमारे, और मकतूल है लेकिन उन्हें इनाम मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं, उन्हें इनाम मिलता है, उन्हें इनाम मिलता है, हमें जुर्माने लगते हैं, उन्हें इनाम मिलता है। अब बिना किसी तमहीद के शेर पेश कर रहा हूं, इस अदालत में मुलाजा फरमाएं। सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ। भाई हाशिम, शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ। मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं, मेरे
जब देख कर मुस्काने लगते हैं। और अब देखता हूं मेरे मिसरों से, मेरे लफ्जों से कौन नहीं जुड़ता। पेश कर रहा हूं एक ऐसा शेर जो आपको याद रह जाएगा। मुलाहाजा फरमाए, बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है। एक एक शख्स शिरकत चाहेगा मेरा ये शेर। बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है। बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है। जिन्हें उड़ना नहीं आता ऊपर फैलाने लगते हैं। वाह वाह वाह, भाई बहुत अच्छे जनाब अल्ताफ ज़िया, जिंदाबाद। और आपकी तहजीबी सरफराजियों को सलाम कि लखनऊ और दिल्ली की अदबी महफिलों से 1000-1500 किलोमीटर फासले पर आपने उसी तहजीबी बरतरी का सबूत दिया जो वहाँ देखने को मिलती है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं नहीं जानता कि जादू नाम की कोई चीज़ दुनिया में है या नहीं है, लेकिन जितनी देर अल्ताफ ज़िया अपना कलाम सुना रहे थे यकीन हो रहा था कि जादू नाम की कोई चीज़ ज़रूर पाई जाती है। बहुत मुबारकबाद जनाब अल्ताफ ज़िया, आपको बहुत मुबारकबाद। और अब मैं अल्ताफ जितनी देर पढ़ रहे थे मुझे कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर याद आ रहा था कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ये गज़ल का जादू है कि शायर अपनी बात कहता है और तमाम सामीन अपने माजी की गुनहगार रातों की तरफ झांकने लगते हैं। कहानी मेरी रूदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। शायर अपनी कहानी बयान करता है, सुनने वाला समझता है कि वो उसकी ज़िंदगी का अफसाना है। यही शायरी का कमाल है और इसी वजह से इतना बड़ा मजमा तमाम रात मुशायरों में मौजूद रहता है। दुनिया की किसी ज़बान को ये फ़ख्र हासिल नहीं है कि 20,000 25,000 का मजमा तमाम रात शायरी सुनाए। ये सिर्फ उर्दू ज़बान को ये फ़ख्र हासिल है कि 20-25 हज़ार का मजमा तमाम रात शायरी सुनता रहता है। और यही वजह है कि कहा जाता है कि उर्दू एक ज़बान ही नहीं, उर्दू एक तहज़ीब है, उर्दू एक तरबियत गाह है। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ ज़िया। और अब आइए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर जाकर देख सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब अकाउंट पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब अकाउंट विजिट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर जा सकते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।